بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تحقیق نیوز اور میں ہوں آصف اسکر۔ ناظرین آج ہم آپ کے لیے بہت ہی اہم اور سنگین موضوع لے کر آئے ہیں۔ جڑواں شہروں کے مختلف علاقوں میں جگہ جگہ گلی محلوں میں پیٹرول کی ایجنسیاں قائم ہو چکی ہیں اور اس حوالے سے ایجنسیوں پر کسی بھی قسم کے حادثات کے لیے کوئی بھی واضح آلات موجود نہیں ہیں جن سے حادثات کی روک تھام کی جا سکے۔ ناظرین ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینئر صحافی جناب مرزا شفیق صاحب، جنہوں نے پیٹرول کی ایجنسیوں کے حوالے سے کافی تحقیق کر چکے ہیں۔ تو آئیے ہم مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو جڑواں شہروں کے مختلف علاقوں میں پیٹرول کی ایجنسیاں قائم ہیں، اس حوالے سے آپ ان کی قانونی حیثیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور پٹرول کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھی ان کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ جہاں تک پٹرول ایجنسیوں کا جو معاملہ ہے، میں ناظرین آپ کو ایک بتاتا چلوں، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، یہ اپنی مدد آپ کے تحت قائم ہے۔ میرے صاحب یہ بتائیں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے شہر میں؟ سر ان کو پوچھتے تو سبھی لوگ ہیں، پولیس بھی پوچھتی ہے، کیونکہ ان کا پیمانہ پہ تو کم ہے، لیکن پھر بھی یہ اتنی ان کی مہربانی ہے کہ ہر پٹرول گلی میں مل جاتا ہے۔ کسی وقت پٹرول دکانوں پہ نہیں پٹرول پمپوں میں نہیں ملتا، لیکن ان کی دکانوں سے بھی پٹرول مل جاتا ہے۔ یہ پٹرول تو خیر بازار سے ہی خریدتے ہیں، پٹرول پمپوں سے خریدتے ہیں، لا کے بیچ دیتے ہیں۔ کئی دکاندار ایسے ہیں کہ جنہوں نے وہ پٹرول جو ہے وہ 2 نمبر خریدے ہیں، بناتے ہیں، منگواتے ہیں، کوئی سیالے سے منگواتا ہے اور کوئی کیمیکل سے بنواتا ہے پٹرول، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل نہیں۔ 100% وہ پٹرول نہیں ہوتا، وہ ایک کیمیکل ہوتا ہے، اور تاکہ وہ کیمیکل جب خشک ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیالہ سے جو پیٹرول آتا ہے وہ کیمیکل والا آتا ہے؟ وہ کچرے والا پٹرول ہوتا ہے، وہ ٹینکیوں سے جب وہ نکالتے ہیں نا، نیچے والا حصہ جو پٹرول کا ہوتا ہے، نیچے پٹرول کی جب اینڈ ہو جاتا ہے نا پٹرول کا، وہ نیچے تھوڑا سا ہوتا ہے، وہ پٹرول جو ہے نا وہ نکالتے ہیں، نکال کر اس کے ڈرم بھرتے ہیں، پھر ڈرم بھرنے کے بعد وہ جو ہے نا مارکیٹ میں سیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ریٹ ہوتا ہے پیٹرول کا ان کا، وہ زیادہ ہوتا ہے یا ایک جیسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں، یہ پٹرول جب یہ سیالے سے خریدتے ہیں تو ان کا پٹرول کا کم از کم 20 روپے کا فرق ہوتا ہے۔ ان کو سستا ملتا ہے؟ ہاں جی، ان کو نہیں، سستا یہ جو ملتا ہے۔ ہمیں دیتے ہیں پیٹرول، عوام کو جو دیتے ہیں، ہمیں جو یہ پٹرول دیتے ہیں نا، یہ کم از کم 10-20 روپے اوپر رکھ کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے باوجود بھی غلط پیٹرول دیتے ہیں، صحیح نہیں دیتے؟ ہاں جی، یہ پھر بھی پٹرول ان کا جو نا معیار اس کا اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کا پیمانہ پورا ہوتا ہے؟ جب 1 لیٹر بندہ کو پیٹرول ڈالتا ہے بائک والا، تو کیا وہ پورا 1 لیٹر ہوتا ہے؟ نہیں، وہ پورا لیٹر تو نہیں ہوتا، اس میں جو پیمانے ہوتے ہیں وہ کٹے ہوتے ہیں، کٹے مثلا دوبارہ بنے ہوتے ہیں، لیٹر کے اوپر پونا لیٹر جو نا وہ ختم کیا جاتا ہے، اور وہ پیمانہ جو ہے نا وہ 1.25 لیٹر کا ہوتا ہے۔ کیا پیٹرول چونکہ ایک خطرناک چیز ہے، اور میں نے بھی دیکھا ہے 1-2 جگہوں پر کہ انہوں نے بس پیٹرول ایک دکان میں ایک کیبن سا بنا کے اس کے پیچھے رکھا ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پر مشینیں لگی ہوتی ہیں، بعض جگہوں پر یہ ہاتھ سے ہی بھر کر اپنے وہ جو ہوتے ہیں ڈبے سے ان میں دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی بندوبست کیا ہوتا ہے خدا نخواستہ اگر آگ لگ جائے؟ کوئی ایسی دکان ہوتی ہے جس میں انہوں نے بندوبست کیا ہوتا ہے، انہوں نے وہ آلات جو لگائے ہیں کہ ریت رکھی ہوتی ہے بعض کا، تاکہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کو کنٹرول کر لیا جائے، لیکن بہت کم لوگوں نے یہ سسٹم رکھا ہوا ہے۔ زیادہ تر کئی دکانوں پہ آج تک سنا ہوگا آپ نے کہ بھی آگ بھی لگ چکی ہے، کافی دکانوں میں آگ لگی ہے، لیکن اس کے اوپر فوری طور پر پھر پرچہ بھی ہو جاتا ہے، اور جب آگ لگتی ہے تو پھر آپ کو پتہ کہ یہ پورے ارد گرد دکانیں جو ہے نا وہ
वो उनको भी आग लगने का खतरा होता है। अच्छा ये बताएं कि आपने कहा कि जी फिर इन पे पर्चा आग लगने के बाद ही पर्चा होता है, आग जबकि इनकी जब- कानूनी हैसियत ही कोई नहीं है, जब तो पर्चा पहले क्यों नहीं होता? आग लगने का इंतज़ार किया जाता है? असल में पर्चे इनके ऊपर होते हैं, लेकिन आग तो अचानक लग जाती है। यहाँ पर सिगरेट भी पिया जाता है, बाद का सिलेंडर रखे होते हैं छोटे छोटे, वो चाय बनाने के लिए रखे होते हैं, जहाँ पर करीब दुकान कोई नहीं है, जी अपना होटल नहीं है कोई भी, जी। और वहाँ ने उन्होंने एक सिलेंडर रखा हुआ था और वो सिलेंडर से चाय वगैरह बना लेते हैं। उस वजह से इनको तकलीफ़ भी होती है और बाज़ का आग भी लग जाती है, और जब आग लगती है तो फिर आपके सामने ही है कि इनके हालात कैसे होंगे। पुलिस का किरदार क्या है? आप कहते हैं कि ये किस तरह से कायम है? बहुत सारी एजेंसियाँ कायम हैं पिंडी इस्लामाबाद दोनों में, तो जब इनकी कानूनी हैसियत ही नहीं है तो ये किस तरह से चल रही है? मैंने तो देखा मुख्तलिफ इलाकों में 2-2 3-3 भी होती हैं। ये असल में चलती तो है, लेकिन ये कि पुलिस के कॉपरेट करते हैं पुलिस वाले, पुलिस के ताउन से चल रही हैं? पुलिस के कानून से चलती है। अच्छा, तो पुलिस आप क्या कहते हैं कि पुलिस किस तरह का ताउन कर रही है? पुलिस तामन आपको पता है कि आजकल के दौर में ये बहुत पेट्रोल का माफिया जो ना बहुत बड़ा है। ये हर जगह पे, हर महल्ले में, हर गली में ये पेट्रोल एजेंसियों वाले बैठे हुए हैं, और ये पुलिस को भी देते हैं। कईयों ने तो मंथलियाँ लगाई होती हैं कि ठीक है जी, हम आपको महीने का 8-10 हज़ार रुपया देंगे, तो आप मेहरबानी करें, हमें ज़रा थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जाए। अच्छा, तो आप कहते हैं कि पुलिस ने इंसानी जानों की कीमत 8-10 हज़ार रुपये रखी है। ज़ाहिर है कि अगर वो एक एजेंसी तो नहीं ना होती, कम से कम एक इलाके में कम से कम 7-8 एजेंसी होती है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि जिस इलाके में एजेंसी होती है 7-8, वहाँ पर लोग कितने होते होंगे? पूरा एक इलाका होता है ना, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग हाँ होते हैं। बिल्कुल होते हैं वो। तो 7-8 हज़ार रुपये अगर पुलिस ले के इनको इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त दे रही है, तो क्या ये सही है? नहीं, सही तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि आवाम के लिए कुछ सहूलतें भी हैं इनकी, क्योंकि ये पेट्रोल जब बेचते हैं, बाहर जाते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए पैदल जाना पड़ता है। किसी पंप पे चले गए हैं तो वो पैदल जाएंगे, अभी या घर से निकलेंगे तो कोई ना कोई पेट्रोल वाला आपको मिल जाएगा, वो उधर से वो आप पेट्रोल लीटर ले लेते हैं, कोई 100 रुपये का ले लेता है, कोई 200 का लेता है। वो पेट्रोल जो है ना वो डलवा कर वक्ती तौर पर अपना गुजारा करते हैं और फिर पंपों पे चले जाते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि पेट्रोल उन इलाकों में फ़ायदा है पेट्रोल एजेंसियों का जहाँ पे पेट्रोल पंप दूर हैं? जी जी, ये कम से कम मेरा ख्याल है कि 25-26 किलोमीटर के फासले पर अगर कोई पेट्रोल एजेंसी बन भी जाती है ना, तो मेरा ख्याल है कि उनको ओगरा इजाज़त देना चाहिए ओगरा को, ताकि दोबारा इनको कोई तंग न करे। आवाम की सहूलत के लिए ये पेट्रोल एजेंसी बनती है। तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं पुलिस, उनका फिर आप क्या कहते हैं कि उनको क्या आपके ख्याल में पेट्रोल एजेंसियां रहनी चाहिए या बंद होनी चाहिए? देखें, इनकी कानूनी हैसियत तो कोई नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर ये बंद भी हो जाए तो फिर ये है कि अवाम को पैदल थोड़ा सा जाना पड़ेगा पेट्रोल पर, पेट्रोल पंपों पर। वो तो मखसूस इलाके हैं थोड़े से ना, हर पेट्रोल शहर पंप। में तो नहीं है। अच्छा, शहर में तो ऐसे ही है कि पेट्रोल पंप जो है ना हर आधे किलोमीटर के फासले पे कोई ना कोई मिल जाता मगर है। मैंने रावलपिंडी शहर में भी देखा है पेट्रोल एजेंसियां बनी हुई हैं। ये उनका अपना निज़ाम भी चलता है, क्योंकि ये जो पेट्रोल बेचने वाले इनका और कोई कारोबार नहीं है। पेट्रोल इतना बड़ा माफिया है ये कि क्योंकि इनको 1.25 लीटर पेट्रोल इन्होंने देना होता है 1 लीटर में। जब 1.25 लीटर पेट्रोल देंगे तो रात को इनकी कम से कम दिहाड़ जो है ना वो कम से कम कुछ नहीं करते, 3500-4000 रुपया इसकी दिहाड़ बन जाती है डेली का इनका बनता है। और ये देखें कि इन्होंने मुलाजम भी रखे होते हैं, कोई 15,000 को 20,000 रुपया तनख्वाह लेता है, और उनके लिए रोटी पानी का भी बंदोबस्त होता है, उनको रिहाइश भी देनी पड़ती है, और इसी तरीके से फिर अपना वो निज़ाम चलाते हैं। सर, आपने काफ़ी सारे इस बारे में सर्वे भी कर रखा है, आपने तहकीकात भी कर रखी हैं पेट्रोल एजेंसी के ऊपर। आपका कोई आइडिया है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद
जुड़वा शहरों में टोटल लगभग कितनी एजेंसियां होंगी आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि मैं नाजरीन को आगाह करता चलूँ कि ये जुड़वा शहर में जितने पेट्रोल एजेंसी वाले बैठे हैं वो तकरीबन हज़ारों में क्या बहुत ज़्यादा है फिर भी। और सब पुलिस को रिश्वत देकर बैठे हैं। सब रिश्वत देते हैं, पुलिस पर्चे भी देती है, इसके बावजूद इनका और कारोबार कोई नहीं है, मजबूरियाँ इनकी है। नहीं, मेरा अब देखिए कारोबार तो बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं, तो इसका मतलब वो गैर कानूनी काम करना शुरू कर दें। बस इनके बस ये हालात ही ऐसे हैं कि इनको और कोई काम आता नहीं है। नहीं, ये कोई टेक्निकल काम तो है नहीं, कोई हुनर तो है नहीं। हुनर इन्होंने तो- दुकान से पेट्रोल ख़रीदना है, कहीं और से ख़रीद के हमें बेच देना है, इसमें क्या हुनर है? नहीं ऐसा मेरे हिसाब से मिर्ज़ा साहब आप थोड़ा सा देखें कि आवाम को मुश्किलात को मद्देनज़र छोड़ें कि पेट्रोल पंप करीब से मिलता है या दूर से पेट्रोल जल्दी मिल जाता है। मेरे हिसाब से पेट्रोल एजेंसियों को बंद किया जाना चाहिए, कानून हाँ। नाफिज करने वाले इदारों को सख्त तरीन एक्शन लेना चाहिए, और बल्कि उन पुलिस वालों को उन काली भेड़ों के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेना चाहिए जो इन लोगों से पैसे लेकर इंसानी जानवरों से खेलने का इन्हें सर्टिफिकेट देते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपकी बात दुरुस्त है कि ये काली भेड़ें जो है ना ये ज्यादती करते हैं इन लोगों के साथ भी, और ये भी ज्यादती करते हैं अवाम के साथ। वो और- पुलिस तो सबके साथ ज्यादती कर रही है, इसका मतलब हुआ खाली इनके साथ ही नहीं कर रही। नहीं, ये भी तो ज्यादती करते हैं ना अवाम के साथ, 1 लीटर की बजाय नहीं, पौना अगर ये लीटर पूना भी देने लग जाए तो फिर भी इनको नहीं इजाज़त देनी चाहिए मेरे हिसाब इजाज़त तो बिल्कुल ही नहीं है इनको, बस गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी है इनको। ये पेट्रोल जो बेचते हैं अपनी मदद आपके तहत बेचते हैं, पुलिस वाले इनके ऊपर पर्चे भी देते हैं, और फिर ये जब छुटकर आते हैं वहाँ से फारग होकर आते हैं, ज़मानत करवा के आते हैं, ये शख्सी ज़मानत पर तो फारग हो जाते हैं। जब शख्सी ज़मानत एक पेट्रोल वाला दूसरे पेट्रोल वाले को शख्सी ज़मानत देगा तो वो चला जाएगा घर, फिर जब जाएगा तो फिर वो अपनी दुकान खोल कर बैठ जाएगा, तो अगले दिन फिर वो दूसरी दुकान पर चले जाएगी पुलिस। ताकि पिछले दिनों में लियाल चौकी में कम से कम 5-7 दुकानों में पर्चा हुआ है, लेकिन जब वो उनकी ज़मानतें हो गई हैं तो फिर वो उन्होंने आकर फिर बैठ गए। अच्छा, ललियाल चौकी को ही ले लें। ललियाल चौकी जो रावलपिंडी का एक इलाका है, ये छतरी चौक की तरफ है गालिबन। जी जी, ये तो छतरी यहाँ चौक- पर आपने सर्वे किया लगभग कितनी एजेंसियाँ हैं? ये 12-13 के करीब एजेंसी है छतरी चौक में। अच्छा, आगे तो इन्होंने सिर्फ 12-13 को छोड़ के 4-5 पे ही पर्चा दिया, आप कह रहे हैं? फिलहाल तो 4-5 बकाया ये है कि ये वो दुकानें बंद करके भाग भी जाते हैं ना, तो वापस नहीं आते फिर? आते हैं ये तो फिर पुलिस को और फिर भी पुलिस तो- हो जाती है। पुलिस को और भी तो बहुत काम होते हैं ना, सिर्फ एक ही नहीं कि ये पुलिस को ही हर वक्त पेट्रोल को ही देखते रहें, उनके अपने ज़ाती भी बड़े मामलात होते हैं, और कोई FIR भी होती हैं, मतलब कि अवाम के लिए बैठे हैं, ये अवाम का साथ दे रहे हैं। लेकिन मामला तो यही है कि बस मिलजुल कर निज़ाम चलता है, मैं इसके बारे में और क्या कहूँ, ये ऐसे ही निज़ाम चलता है। बहुत शुक्रिया जनाब मिर्ज़ा शफीक साहब। नाज़रीन, ये थे सीनियर सहाफ़ी मिर्ज़ा शफीक साहब। इस हवाले से नाज़रीन आप भी अपनी कोई राय का इज़हार करना चाहें तो आप हमें आगाह कर सकते हैं। चलते चलते मैं मिर्ज़ा साहब को भी शुक्रिया अदा करूँगा, और दूसरा नाज़रीन मेरी कानून नाफिज करने वाले इदारों से गुजारिश है, पुलिस के आला हकाम से गुजारिश है कि ये पेट्रोल एजेंसियाँ जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम हैं, इनका फिल फौर ख़ात्मा किया जाए। इनको पैसे लेकर इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त कतई नहीं दी जाए। मेरे साहब बता रहे थे कि इनकी तादाद दोनों शहरों में हज़ारों में बनती है, और इस तरह से पुलिस को अपनी तनख्वाह से हटकर इस तरह से रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। और पुलिस के आला अफसरान से गुजारिश है कि जो पुलिस एहलकार इस हवाले से रिश्वत खोरी में मुलविस हैं, उनके ख़िलाफ़ भी सख्त किस्म की महकमाना कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।